ప్రజ్ఞాభారతి ప్రారంభమై 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 31 సంవత్సరాలకు అడుగుపెట్టింది. ప్రజ్ఞాభారతి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రంగాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ఉన్న మేధావి వర్గాన్ని గుర్తించి మేధావి వర్గం ఈ దేశం కోసం దేశ హితం కోసం ఎలా పనిచేయాలి, వాళ్ళని ఎలా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన తరంగాల్ని వాళ్ళలో ఉన్న ఈ మేధాశక్తిని సమాజానికి ఒక దిశాదర్శనం చూపించే విధంగా ఎట్లా తీసుకువెళ్తుంది అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మొదలుపెట్టబడింది. విశ్వగురు భారత్ అది మనందరికి తెలుసు. అయితే విశ్వగురు అన్నప్పుడు అన్ని ఫీల్డ్స్లో ఎంత ఉన్నత స్థితిలో ఉత్కృష్ట స్థాయిలో ఉండి యావత్ ప్రపంచానికి కూడా మార్గదర్శనం చేసినట్టు మనము తర్వాత మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఏదైతే మనకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మనకి బోధిస్తూ వస్తూ ఉన్నారో అలాంటి ఆ ఎడ్యుకేషన్ని ఆకలింపు చేసుకొని ఇదే సత్యం కావాలి అనే ఒక భ్రమలో మనం ఉంటూ సత్యమైనటువంటి చరిత్రని సత్యమైనటువంటి జీవిత గాథల్ని సత్యమైన సాహిత్యాన్ని అన్నింటినీ మనం మన నుంచి దూరం క్రమేణా ఒక షడయంత్రంలోంచి మన నుంచి దూరం చేస్తూ రాబడింది. ఇది కాదు అసలు సంగతి ఇది అనేటటువంటి ఈ సత్యాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని అధ్యయనం చేసి దాన్ని సమాజం అంతా కూడా విస్తరింపచేయాలి, అందరికీ తెలియజేయాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ప్రజ్ఞాభారతి ఇన్ని సంవత్సరాలు పనిచేస్తూ వస్తుంది. ఎందరెందరో మేధావులు ఈ యొక్క డయాస్ నుంచి మాట్లాడారు, వాళ్ళ యొక్క మేధస్సుని మనకు అందించారు. ఎంతో మంది మేధావులు వచ్చి వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ యొక్క భావజాలాన్ని పరస్పరం అందిపుచ్చుకున్నారు. ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు కూడా దీని మాధ్యమంగా మనం పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఎంతో మంచి పుస్తకాలు రాసిన వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం పరిచయం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి కేవలం మేధావి వర్గాన్ని వాళ్ళ యొక్క మేధస్సుని ఒక సరైన దిశాదర్శనం చేయడం, ఆ దిశాదర్శనం అందరికి అందజేయడం, అందరిలోని మేధస్సుని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి గంగా ప్రవాహంలో కలిపి ఈ దేశాన్ని తిరిగి మళ్ళీ పునర్వైభవ స్థానాన్ని తీసుకురావడం అనేది ప్రజ్ఞాభారతి యొక్క ముఖ్య ధ్యేయం. ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇది చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్తాను. A very inspiring preamble, and this is what we have to realize. The directive principles, they are not enforceable. Part 4 of the Constitution are the directive principles. Article 44 says, that's what is very, very relevant for today's talk of 44, Uniform Civil Code for the citizens. There may be tourists of other countries. It does not apply to them. For the citizens, the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Throughout the territory of India shall endeavor, conceived but not delivered. Conceived but not delivered. Similarly, promised but not enacted. Even after 75 years, this is a tragedy. Now, a number of the directive principles which are in part 4 of our Constitution are enacted to be enforced. Then they become enforceable rights, whereas this is only a guiding principle. But all these principles are supposed to be enacted because in the preamble we said equality, socialism, etc., etc., etc. Therefore, to say that we have to, this is not the time, when is the time? Same thing happened with Article 370 also. Is it permanently temporary? What a travesty of language, permanently temporary. So it has been decisively done away with. Now there are arguments in the Supreme Court, let there be. Now, when this Constitution was being debated, Dr. Ambedkar was the chairman of the Drafting committee. Say it loudly. Drafting committee. Not the writer of the Constitution. He is chairman of the drafting committee. He lost his membership of the Constituent Assembly because he was elected from what became East Pakistan. He could not be elected from anywhere. So, when the division took place, he lost his job, membership of the Constituent Assembly. And then Dr. Rajendra Prasad and Sardar Patel rang up the chief minister from Bombay presidency, Bal Gangadhar Kher, and said, we want Dr. Ambedkar. Create a vacancy, elect him to the Constituent Assembly.
he was elected. And not only he was elected committee, much more surprise, that was he was elected chairman of the drafting committees, which consisted of 7 members, of which Congress had only 1 member, Kulapati K.M. Munshi. The other 6 were the gems of India, the greatest intellectuals of India. So when Dr. Ambedkar, who entered the Constituent Assembly only to secure the interests of the scheduled caste, that's what he said, that's what he wrote. He circulated a note also, only on that, I enter only for this. But when once he was made the chairman, he said, now I am not a scheduled caste person. I have to work for the whole of the country. And as chairman, it was a second reincarnation, the incarnation of Dr. Ambedkar to rise to the occasion to be a Bharatiya and see that there is a constitution which is the envy of the world. I am mentioning this one. When the constitution debates were going on, some nationalist Muslims were also there in that. In that, the nationalist Muslims, Abdul Qayyum Ansari from Bihar and Maulana Hafiz ur Rahman wanted a provision inserted in the constitution to the effect that Muslim qazis should be appointed to administer Shariat laws and a Muslim minister placed in charge of waqf. Can you imagine this one? India was partitioned. And even after partition, when we were writing the constitution, some of the nationalist Muslims, purportedly instigated by the greatest nationalist Muslim, who was that? Abul Kalam Azad. Purportedly instigated by that. So they wanted Shariat law to be there in India and to enforce that one Qazi should be appointed. Of course, Ambedkar shot down, everybody shot down. Begum Aizaz Rasool, madam, she is from your province. Begum Aizaz Rasool, she was a Muslim League leader in the UP Assembly. But after partition, she said, I am a Bharatiya, I am an Indian, I am no longer Muslim League or anything of the sort, all are gone. She opposed the reservation for Muslims, weighted average for Muslims, separate electorate for Muslims. So she is one of the greatest leaders of thought, just like our today's guest of honor and speaker. She said, we will now think of only Bharat and India and not just Begum, Aizaz, Rasool. That's a lady. So great ladies are there in every section of our population who could foresee the destiny of our India. Friends, now about this uniform civil code. Nehruji, we were making reforms in the Hindu civil code. Hindu reform bills were made. And so many people opposed. So many sadhu, sants and learned people opposed. We cannot fiddle with the Hindu system. But reformers prevailed. Dr. Rajendra Prasad was overcome. The resistance of people like Rajendra Prasad, who said, no, this constitution has no mandate. Let there be elections. After 1952, when there are general elections, when that new assembly comes, no constitution. But all that was negatived in the Constituent Assembly because, as Ambedkar said, the greatest talent that any country can muster for writing a constitution is here now. Although these people are elected indirectly by the legislative assemblies of the then provinces, which were themselves were elected by an electorate of less than 14% of this country. But he said, the greatest intellect is here, therefore this constitution is to be very great. So friends, this is the background. Just consider one thing. In spite of terrific opposition from the Hindu sons and secular peoples, the Hindu reform code bills were passed. Dr. Ambedkar had to resign because it was getting very, very late. People were not supporting him. That's a separate story. So friends, who is opposing that one? Why are they opposing that one? They are saying time has not come. When time will come? When time will come? Eternity. Eternity. Directive principles. Why did we have in the preamble such great literature, great ideas?
they had to be done much before. Whether the reform will be coming from inside or whether it will be induced from outside is the question. If it does not come from inside, it has to be induced from outside. Can it be done? There are Muslims not only in this country. There are 192 countries of the United Nations, and 65 or so are Muslim majority countries who are in the Organization of Islamic Cooperation. When the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights, these two are lawyers. Universal Declaration of Human Rights, the OIC, the Organization of Islamic Cooperation of 62 countries, came out with Islamic Declaration of Human Rights. They are not ordinary human beings, according to me. They are different human beings. So they are not the Universal Declaration of Human Rights, but Islamic Declaration of Human Rights. I have read that one. There are nuances, although it is styled like that one. So friends, if the reform does not come from inside, why does it not come? In Europe, so many nations are there. In the Americas, there are so many nations. There are Muslims all over the world. In those countries also there are Muslims. Are they having a separate personal law enforced? No, they follow the law of the land. Why should Muslims oppose this one? Who is encouraging them to do this one? Is All India Muslim Personal Law Board a representative body? If there is a separate one for Shias, there is separate personal law board for the Shias, and of course there are Ahmadiyas, there are Mohammadis, there are so many, we are not going into that one. So if it does not, if when the Muslims all over the world, wherever they are living outside the Muslim lands of those 62 countries, if they can subject themselves to the common law of the land, why should there be an objection here in this country? Because that is encouraged by the vote bank politicians. By the vote bank politicians. Any change, people like her and Ayaz Rasul, etc., all of them are for change. Human rights, universal human rights, all are human beings. Whether a woman is belonging to Islam or Hinduism or Buddhism or Christianity or anything of the sort, she is first of all a human being. That's why Universal Declaration of Human Rights. So as part of the enforcement of the Universal Declaration of Human Rights, to which our country has acceded to by putting its signature, and so many countries have done, this uniform civil code. Is it going to be Hindu code? Certainly not. Certainly not. Some people are saying, according to the Hindus, there is a statue of undivided family giving so many things, but it is only income tax code. It is not a law. It's an income tax code. Chartered accountants will tell us. And if it goes, let it go. We are prepared to cut down some of the traditional rights and practices for this country's sake, for the unity of this country, for the integrity of this country. That's what we all have to have. And it is very great that a person of this stature, she is a Supreme Court lawyer, I think there will be an introduction, no? Right. So she has agreed to come and address our people. The Pragya Bharati, as Vijay Bharati has said, is an intellectual forum promoted 30 years ago. It's my privilege and my duty. And I have been doing this one as the chairman, bearing this, my so many other associates. And so many of you that had come would not expect this. From yesterday afternoon onwards, I got half a dozen calls from the police, from the special branch, from the city police. I asked them, are you expecting any danga? Anyway, we are taking precautions because it happened once. Some people jumped, ladies jumped in their hijab in order to murder Arun Shauri when he was addressing. That was in Bharati Vidya Bhavan some time ago. So, after seeing that one, after remembering that one, the special branch, as well as the city police, have rung me, have rung my associates, saying who are coming, how many are coming, where are they coming, who is this lady, etc. So, let them, because I congratulated them for the precaution that they were taking, because they are after all doing their duty, therefore it is for us to cooperate with them. Thank you very much. So, we will all listen to her.
She's a social activist, a writer, and also a motivational speaker. And she is the founder and national convener of Rashtra Jagran Abhiyan. And most of you, I'm sure you must have watched her on the television, the main media. She is a featured guest on several news channels in the debate programs. And she is a fervent supporter of CAA, Triple Talaq, and for that reason, any policy which is good for the nation. Her straight and patriotic approach and wonderful thought towards the nation, which came out through the main media, mainstream media, and of course the social media, actually brought her further into the limelight. I think I'm right, Madam, mentioning that. No doubt, such good thoughts and words and deeds, actually they matter a lot for today's society of ours and the nation. By the way, she has been awarded with this certificate of teacher of yoga from Yoga Shiromani. Now it's time for us to listen straight from her, and after that we'll have time for question answer session. भारतीय सनातनी मुसलमान आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मन में एक भावना आई। अभी आदरणीय डॉक्टर तिरुपति हनुमान चौधरी जी ने जब सर के ऊपर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मौजूद सभागार में काफी लोग मुझसे उम्र में, तजुर्बे में, ज्ञान में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद मुझे मुख्य वक्ता की तरह यहाँ पे बुलाया गया है। उससे मुझे एक शायर की कुछ लिखी हुई कुछ लाइनें याद आई। विभाजन के समय एक शायर हुआ करते थे, नाजिश प्रतापगढ़ी। तो उनका पूरा परिवार विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया था, वो भारत में रह गए थे। तो उनका परिवार उनको बार बार चिट्ठियां लिखता था कि तुम्हें भारत में खतरा है और तुम पाकिस्तान आ जाओ, कहीं तुम्हें मार ना दिया जाए, हमें बहुत चिंता होती है भाई तुम्हारी, प्लीज तुम पाकिस्तान आ जाओ। तो उन्होंने बहुत बड़ी एक चिट्ठी गजल की फॉर्म में अपने परिवार को लिखी थी, जिसकी 4 लाइनें मुझे अभी मंच पे याद आई, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करूं। वो कहते हैं, दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नोके खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। प्रज्ञा भारती को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने राष्ट्र जागरण अभियान को और मुझे ये मौका दिया कि हम अपने विजन को, अपने विचारों को आपके सामने लेकर आएं। और आज का जो विषय है वो भी बहुत रेलेवेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ह्यूमन राइट्स। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे एक चश्मे से, एक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। CA/NRC भी उन्हीं जैसा एक विषय था। ऐसा ही एक नया विषय हमारे सामने आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सोशो पॉलिटिकल, लीगल, रिलीजियस सारे एस्पेक्ट्स में एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ उस विषय को देखना पड़ता है, तभी उस विषय के ऊपर हमारी समझ बढ़ती है। तो आज के इस वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं मंच पर आसीन प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम करती हूँ, सभागार में मौजूद सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और अपने गुरुदेव आदरणीय श्री KN गोविंदाचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत करती हूँ। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो एक लेमैन के मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली है क्या, जो एग्जिस्टिंग कानून है क्या वो नहीं रहेंगे। तो एक अप्रोच मैं हमेशा अपनी लर्निंग में अपनाती हूं
कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए जैसे आप 10 साल के हो, और सामने वाले को भी ऐसे समझाइए जैसे किसी 10 साल के बच्चे को समझाया जा रहा हो। Yes. Yeah. हाँ, इज इट ओके प्लीज, बिकॉज मैं थोड़ा इमोशनल या जय हो। तो मेरा फ्लो ऑफ थॉट टूट गया कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रही थी उस समय। मैं कह रही थी कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए अप्रोच रखनी चाहिए कि एक 10 साल के बच्चे को आपको समझाना हो तो आप समझ जाएं। तो देखिए, जब भी बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, भारत में 2 तरह के कानून हैं, एक क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ यानी आपने कोई मर्डर कर दिया, कोई डकैती, कोई बड़ा क्राइम कर दिया, जो आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत एक पनिशेबल ऑफेंस है, वो क्रिमिनल लॉ में आता है। और कोई भी अगर आप क्रिमिनल कोई ऑफेंस करते हैं तो आप थाने में जाके एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। सिविल लॉ में क्या आता है? सिविल लॉ में आती हैं पर्सनल लॉज, यानी कि शादी नहीं चले तो तलाक या मेंटेनेंस, और अगर बच्चे हैं तो कस्टडी, गार्जियनशिप, बच्चे नहीं हैं तो अडॉप्शन। इस तरह की चीजें सिविल लॉज में आती हैं। अब सिविल लॉज में ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई सिविल रॉन्ग हो जाए तो वो थाने में जाके एफआईआर लॉन्च नहीं करा सकता, उसको प्रॉपर कोर्ट जाना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। पुलिस वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं। और यहां पे ये डिफरेंस समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज 21वीं सदी में एक लोकतांत्रिक देश में, एक आजाद देश में बहुत सारे अपराध, बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हमारी आईपीसी का वायलेशन कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पर्सनल लॉज के नाम पे आज भी हमारे देश में चल रहे हैं, और उनको पर्सनल प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल लॉ बोल के एक प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। और क्रिमिनल लॉ भी उन विक्टिम्स को प्रोटेक्शन नहीं दे पाती जो प्रताड़ित होते हैं इन प्रैक्टिसेस के द्वारा। तो वो क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे अपराध होते हैं जो पर्सनल लॉस के नाम पे होते हैं, वो मैं विद एग्जाम्पल्स आपके साथ आगे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले जो अभी आदरणीय हनुमान जी ने भी शेयर किया, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मिसकंसेप्शन समाज में फैल रहा है। जब बात होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीडेड फॉर ह्यूमन राइट्स या यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीडेड फॉर विमेन राइट्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो सबसे पहली चीज हमें सुनने को ये मिलती है कि ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा है, पॉलिटिक्स हो रही है जी। तो ये सवाल भी हमें अपने मन में क्लियर करना है कि क्या ये कोई राजनीतिक मुद्दा है? हमारे संविधान का पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 टू आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट को गवर्न करने के गाइडलाइंस देते हैं, उसमें कैटेगोरिकली मेंशन्ड है हमारे संविधान में, यानी कि किस समय 1950s की बात मैं कर रही हूं। आर्टिकल 44 क्लियरली कहता है, स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसकी जिम्मेदारी है कि भारत के हर नागरिक को एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ दी जाए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कब कह दिया गया है? 1950s में। तो ये ना आज का मुद्दा है और ना ही ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा है। आर्टिकल 37 कहता है इसी संविधान का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई कोर्ट कचहरी नहीं दे सकती नागरिकों को। नो कोर्ट ऑफ इंडिया कैन गिव अस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। दूसरी क्लैरिटी हमें ये होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें केवल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही दे सकती है, इवन कोर्ट्स भी नहीं दे सकती हैं, नॉट इवन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें देगी। अब नेक्स्ट सवाल मन में ये आता है कि अगर इतना सिंपल है, इतना आसान है, आप उदाहरण भी दे रही हैं कि भाई इतने अपराध हो रहे हैं पर्सनल लॉस के नाम पर, तो हो क्यों नहीं रहे? वाई इज इट बिकमिंग सो डिफिकल्ट? समाज में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके ऊपर भी मैं कुछ उदाहरण देती हूं कि 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिस कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में या एक नरेटिव बिल्डिंग हो जाती है कि भाई ये नहीं आना चाहिए। वो 2 महत्वपूर्ण कारण में एक कारण है शरिया एप्लीकेशन एक्ट। वो क्या है? वो 1937 में ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की मिली भगत के द्वारा लाया गया एक कानून है। आप आजकल तो सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, आप लोग डालिए। शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 कहता है मुस्लिम्स विल बी गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉज। ऐसा तो नहीं है कि 1937 से पहले मुसलमान नहीं थे या 1937 से पहले इस्लाम नहीं था।
सिर्फ भारत के नागरिकों को बांटने के लिए ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत शरिया एप्लीकेशन एक्ट आया, जो ये कहा कि मुस्लिम्स विल बी गवर्न बाय देयर पर्सनल लॉज। अब वो पर्सनल लॉज आप देखिए 4-5 मुझे लगता है 6-7 सेक्शंस की एक्ट है, 2 पन्नों की भी एक्ट नहीं होगी, कुछ भी कोडिफाइड नहीं है, कुछ भी इन डिटेल नहीं है। दे विल बी गवर्न बाय देयर पर्सनल लॉ। क्या वो एक सवाल मैं मुस्लिम समाज में भी पूछती हूं कि क्या वो पर्सनल लॉ भी कोडिफाइड है? द आंसर इज बिग नो। इवन शरिया लॉ, पर्सनल लॉ इज नॉट कोडिफाइड। इसका मतलब है कि शरिया एप्लीकेशन एक्ट ने तो कह दिया कि पर्सनल लॉ द्वारा गवर्न होंगे और पर्सनल लॉ कहीं लिखी नहीं है। इसका मतलब पर्सनल लॉ के नाम पे कुछ भी कर ले दीजिए, कुछ भी मनमानी कर लीजिए कि जी ये शरिया कहती है। कोई भी लोकल क्लेरिक, लोकल मौलवी किसी अपराध को भी अगर कह दे कि हाँ ये शरिया कहती है तो वो हो जाएगा। और वो कोई प्रताड़ित अगर कोई अपराध किसी महिला के साथ हो रहा है, वो बेचारी FIR कराने जाएगी, वही करती हैं विक्टिम्स, तो उसको क्या सुनने को मिलेगा कि नहीं नहीं यू आर गवर्न बाय योर पर्सनल लॉ। तो इस तरह से एक कैसे कहा जाए कि एक जाल में, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पूरी स्थिति और पूरा विषय फंस गया है। एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि देखिए, एक एंटी नेशनल फोर्स ऐसी है जो चाहती नहीं है कि भारत के नागरिक एक हों। वो कौन है? वैसे तो टोटल 7 एंटी नेशनल फोर्सेज हैं, उसमें हम इन डिटेल राष्ट्र जागरण अभियान में बात करते हैं, लेकिन आज मैं केवल एक एंटी नेशनल फोर्स की बात करूंगी क्योंकि वो हमारे विषय से रिलेटेड है और समय मुझे 40 मिनट दिया गया है, तो उस समय का सम्मान करते हुए एक एंटी नेशनल फोर्स है अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन। ये क्या करते हैं? ये किसी भी एक समाज के बच्चों को भारत के टारगेट करते हैं। हमें भारतीय संस्कृति में क्या सिखाया जाता है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, यानी कि हर बंदे के अंदर परमात्मा विराजमान है। तो किसी ऐसी सनातनी विचारधारा वाले व्यक्ति को आप रातों रात तो टेररिस्ट बना नहीं सकते, जो हर व्यक्ति में भगवान देख रहा है, जो हर जीव में भगवान देख रहा है। यू कैन नॉट मेक दैट पर्सन अ टेररिस्ट। तो टेररिस्ट बनाने से पहले एक सोची समझी रणनीति है, वो ये है कि पहले सेपरेटिस्ट बनाइए, यानी कि अलगाववादी बनाइए। आपकी भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भजन, भेषज यानी कि दवाइयां, सब कुछ अलग है। आपकी शिक्षा अलग है, आपके कानून अलग है, आपकी न्याय प्रणाली अलग है। एक पूरा पैरेलल सिस्टम चलेगा आपका भारत के साथ। जो भारत में चल रहा है वो आपका नहीं है, आपका एक पूरा पैरेलल सिस्टम है। जब एक बंदा, एक बच्चा सेपरेटिस्ट बन जाता है, तब सेकंड स्टेज में उसको कट्टरवादी बनाते हैं। उस स्टेज में उसको बताया जाता है जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी जाती है, उसका ओपन माइंड खत्म कर दिया जाता है, दोनों तरफ ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं। जब वो सेपरेटिस्ट बन जाता है तब फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। उस स्टेज में उसको बताया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है और बाकी सारी दुनिया से मनवाना आपका कर्तव्य है। उस स्टेज में आके वो कन्वर्जन करने की तरफ बढ़ता है, उस स्टेज में आके वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है, उस स्टेज में आके वो सोचता है कि अगर मैंने किसी का पंथ परिवर्तन करवा दिया तो मैं जन्नत में जाऊंगा या जाऊंगी। तो देखिए, ये सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में प्रमुख 2 समाज के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। एक इस्लाम समाज के बच्चों को अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी बना के इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक खालसा पंथ के बच्चों को अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी बना के खालिस्तान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए और अपने बच्चों को ये क्लैरिटी देनी चाहिए कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं लेकिन इस्लाम के नहीं। हम खालिस्तान के खिलाफ हैं लेकिन खालसा पंथ के नहीं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। सेक्युलर हमसे बड़ा तो कोई पूरे विश्व में कोई देश नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ इष्ट देवता क्या है? इष्ट देवता क्या है? अपने अपने आराध्य। मेरे गुरुजी कहते हैं हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता है हमारे देश में, 2-4 और हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई देवी देवता की या पूजा पद्धतियों की, आराध्य की या रिलीजन की नहीं है, लड़ाई सही और गलत की है। अगर किसी रिलीजन को टारगेट करके भारत को तोड़ने की तरफ एक वैचारिक अनुकूलता को प्रमोट किया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। तो ये लोग भी वो हैं जो चाहते नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। क्यों? क्योंकि सेपरेटिस्ट नहीं रहेगा बच्चा तो कहां से एक्सट्रीमिस्ट बनाएंगे, कहां से टेररिस्ट बनाएंगे। तो ये एक अम्ब्रेला वे में मैं आपको सिर्फ थोड़े से कुछ कीवर्ड्स दे रही हूं, बहुत लंबी चर्चा के लिए इस पे समय नहीं है। तो ये लोग भी हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं, बिकॉज ये चाहते नहीं है कि भारत का मुसलमान बच्चा मुख्य धारा में आए या भारत के कानूनों से, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़कर चले।
अब देखिए, पार्टीशन भी सेपरेटिज्म से ही स्टार्ट हुआ था। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम रात को सोए और सुबह पाकिस्तान की मांग हो गई। हम सभी लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में भारत की हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र और हर संप्रदाय का व्यक्ति जब भारत बन के खड़ा हुआ था तो अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे। वो समझ गए थे कि अगर ये भारतीय एक रहेंगे तो हम इनको बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। मतलब इनको हराना तो छोड़िए, इनको बहुत समय तक दबा भी नहीं सकते अगर ये भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय से ऊपर उठ के रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह की चीजें स्टार्ट करी। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। 1857 की क्रांति, डेट हम सबको पता है। उसके एग्जैक्ट 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना होती है। आई थिंक 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट, टर्की की बात थी लेकिन भारत तक आ गई थी। 1925 में तबलीगी जमात की स्थापना हरियाणा में, मुसलमान बच्चों को इंस्टिगेट करके कट्टरवादी बनाने के लिए। 1930s में पाकिस्तान शब्द कॉइन होता है। इसी बीच में 1937 में शरिया एप्लीकेशन एक्ट आती है। 1940 में कम्युनल इलेक्टोरेट का रेजोल्यूशन पास होता है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे होता है और 1947 में देश का विभाजन। तो ये सेपरेटिज्म, ये अलगाववाद जानबूझ के किया जाता है और वो विभाजन पे खत्म नहीं हो गया है। जब तक ये शरिया एप्लीकेशन एक्ट चलती रहेंगी, जब तक ये अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद चलता रहेगा, जब तक द्विराष्ट्रवाद, टू नेशन थ्योरी की वैचारिक अनुकूलता भारत में चलती रहेगी, तब तक विभाजन का खतरा हमारे सर पे मंडराता रहेगा। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसके कानून, उसकी शिक्षा, उसकी न्याय प्रणाली सेम होनी चाहिए। भारत के हर नागरिक की सेम होनी चाहिए। हर कंट्री में होता है तो हमारे देश में क्यों ना हो? कौन सा देश ऐसा है जिसमें रिलीजन वाइज लोगों के अलग कानून चलते हैं? अमेरिकन मुस्लिम्स अमेरिका के कानून मानते हैं, रशियन मुस्लिम्स रशिया के कानून मानते हैं, चाइनीज मुस्लिम्स चाइना के कानून मानते हैं। तो भारतीय मुसलमान भारत का कानून क्यों नहीं मानेगा? ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं जो जानबूझ के हमें बुलाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक नरेटिव बिल्डिंग हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा ओरिजिन पे बात कर लेती हूँ कि देखिए, जब लॉ कोडिफाई होने की बात आती है, ये 1835 की बात है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत के कानून को कोडिफाई कर देते हैं। ये थोड़ा सा जरूरी इसलिए समझना है कि आज क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात स्पेसिफिकली मैं अपने समाज की करती हूँ कि मुस्लिम विमेन के लिए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, ह्यूमन राइट्स के लिए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, या चिल्ड्रन चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है। 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट आती है जो कहते हैं कि हम भारत के कानून को कोडिफाई करेंगे, लेकिन जो हम सिर्फ हिंदुओं की लॉ को कोडिफाई करेंगे। ये उनकी आपस की मीटिंग थी कि भाई दूसरे रिलीजन्स के लोगों को कोडिफाई नहीं करेंगे, लेट्स नॉट टच देम, अभी हम सिर्फ हिंदुओं की लॉ को कोडिफाई करते हैं। 1941 में BN राव कमेटी बनी। उन्होंने भी पर्सनल लॉज को अलग रखा कि मतलब रिलीजन वाइज लोगों को अलग रखा कि सिर्फ हिंदू लॉ हम कोडिफाई करेंगे। अब ये हिंदू कोड बिल 1951 में आया, तो जैसे हर समाज रेजिस्ट करता है, उस समय हिंदुओं ने भी रेजिस्ट किया, क्योंकि उनको भी लगा कि हमारे ये लोग बाहर के लोग हैं, पता नहीं हमारे लिए क्या कोडिफाई कर दें। लेकिन हिंदू समाज की एक बड़ी खूबसूरती है कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ कुरीति या कोई अपराध हो रहा होता है, तो हिंदू समाज से ही रिफॉर्मर्स खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत को गलत कहने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है अन्याय सहकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये भारतवासियों को सिखाया जाता है। इसलिए अगर हमारे समाज के नाम पर भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हमारे समाज से लोग खड़े हो जाते हैं, रिफॉर्मर्स पूरे समाज के खिलाफ जाकर भी सब कुछ अपना ताक पे रख के, कॉस्ट पे डालकर भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको समाज की वेलबींग, वेलफेयर और एक फोरसाइट होती है कि आगे आने वाले 20-25 साल में देश को या समाज को किस चीज की जरूरत है। तो 1951 में लैप्स कर गया था हिंदू कोड बिल, 1952 में पास हुआ। अब पास होने के बाद ही अलग अलग पार्ट्स में अडॉप्ट हुआ। जैसे 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट की सेंस में अडॉप्ट हुआ। अब हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होते हैं कि अगर आपकी आपस में नहीं बन रही है तो आपके इन ग्राउंड्स पर डिवोर्स हो सकता है। अब इससे पहले हिंदू समाज में क्या तलाक का कोई प्रावधान था? कभी नहीं था।
जन्मों जन्मों का रिश्ता, संस्कार से जोड़ते हैं विवाह को। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के ग्राउंड्स आए तो हिंदू समाज ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये समय की मांग है कि अगर दो नॉन कंपैटिबल लोगों की शादी हो जाए तो उनको प्रताड़ित करने के बजाय या टू रिड्यूस देम टू देयर वर्स्ट वर्जन, इससे बेहतर है कि म्यूचुअली सेपरेशन हो जाए। तो हिंदू समाज ने हिंदू मैरिज एक्ट को विद ऑल द प्रोविजंस एक्सेप्ट किया। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट की फॉर्म में आया, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ, ग्रेटर प्रॉपर्टी राइट्स मिले बच्चियों को, महिलाओं को, जो पहले किसी समय में नहीं मिला करते थे। 1956 में ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की फॉर्म में आया। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हिंदू बच्चियों को जो अधिकार उस समय हिंदू रिफॉर्मर्स के कारण या एक सामाजिक अवेयरनेस के कारण मिल गए थे, आज मेरे समाज की, मुस्लिम समाज की बच्चियां उन अधिकारों से आज भी वंचित हैं। और अधिकार तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, उनके साथ बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज। वो पर्सनल लॉज जो कोडिफाइड नहीं है, जबानी तौर पे किसी भी एक व्यक्ति, किसी ठेकेदार के एक स्टैंप लगाने में उनकी जिंदगी के फैसले हो जाते हैं। मैं आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगी, क्योंकि थ्योरी कई बार हम लोगों को इतनी समझ नहीं आती। आई विल गिव यू आई थिंक 8-9 एग्जांपल्स जो मेरे पास, बिकॉज मैं लॉयर भी हूं तो बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां अपने केसेस लेकर आती हैं। एक उदाहरण तो हम सब लोग जानते हैं, हिंदू विमेन को प्रोटेक्शन है सेक्शन 494 आईपीसी का कि बाइगेमी, पॉलीगेमी इज पनिशेबल इन इंडिया। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग वाइफ है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो दूसरी शादी पहली बात तो वॉइड होगी, जायज नहीं होगी। दूसरी बात, आप एक पनिशेबल ऑफेंस से आईपीसी के अंतर्गत आपको सजा भी हो सकती है, 7 साल, आई थिंक 7 इयर्स की सजा का प्रावधान है आईपीसी में। तो हिंदू विमेन आर प्रोटेक्टेड। एक बार शादी हो गई तो वो प्रोटेक्टेड हैं कि डिवोर्स उनकी कंसेंट के बिना नहीं हो सकता, वन साइडेड डिवोर्स नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स नहीं हो सकता, कोर्ट में जाकर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही हो सकता है। लेकिन मुसलमान महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? कहते हैं शरिया में जी 4 शादियां जायज हैं। 4 शादियां जायज हैं तो विदाउट गिविंग डिवोर्स टू योर वाइफ यू कैन मैरी ट्वाइस, थ्राइस और इवन फॉर द 4th टाइम। अब वो महिला कह देते हैं कि मैंने अपनी बीवी की, मतलब हंसी भी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है, कहते हैं कि मेरी पहली बीवी की मर्जी थी जी। आप सोचिए कि साइकोलॉजिकली भी कौन सी महिला ऐसी होगी जो अपने पति को ये इजाजत दे देगी कि मेरे होते हुए आप दूसरी शादी कर लीजिए। हम यहाँ महिलाएं बैठे हैं, कैन वी इवन इमेजिन, गर्लफ्रेंड्स तक पकड़ के पीट देती हैं। आप बीवियों की बात कर रहे हैं कि वाइफ्स कहां से परमिशन दे देंगी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। मतलब मैं आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूं कि दिस इज हैपनिंग विद मुस्लिम विमेन। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूं, हिंदू बच्चियों को प्रोटेक्शन है कि 18 साल से पहले उनकी शादी अगर होती है तो वो अपराध है। भारत में शादी की उम्र लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 है। ये हिंदू बच्चियों को प्रोटेक्शन है। लेकिन मुसलमान बच्चियों को क्या कहते हैं? एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब किसी बच्ची को पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाएं तो आप उसकी शादी कर सकते हैं। अब आज हम सब जानते हैं हार्मोनल चेंजेस हैं, क्लाइमैटिक चेंजेस हैं, 11-11 साल की बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो है एक तो माइनॉरिटी का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक एज का ध्यान नहीं रख रहे हैं। 18 साल से कम उम्र की बच्ची की तो शादी कर ही रहे हैं, जो प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसके अलावा जो बड़ा अपराध कर रहे हैं, आप पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। भारत में कितनी स्ट्रॉन्ग कानून है कि माइनर बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस 20-20 साल तक की सजाएं हैं, रेयरेस्ट केसेस में तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है। आप पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज और छोटी छोटी बच्चियों के साथ लिटरली रेप कर रहे हैं। क्योंकि हमें कानून में क्या सिखाया जाता है कि कंसेंट ऑफ माइनर इज नॉट कंसिडर्ड अ कंसेंट। अगर कोई बच्ची की कंसेंट भी है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती, बिकॉज शी हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ शी इज नॉट अ मेजर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर हर। तो इस तरह की चीजें भी मुसलमान बच्चियों के साथ हो रही हैं। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूं जो हमारा आज का विषय है। एक एग्जांपल हम सब जानते हैं, तलाक बिद्दत, तलाक 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 पहले होता था, भारत सरकार ने फॉर्चुनेटली उसको बैन कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया तो मुस्लिम महिलाओं को पता चल गया कि भाई हमें तलाक 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 एक बार नहीं मिल सकता। लेकिन तलाक हसन, तलाक एहसन आज भी चल रहे हैं। वो क्या है कि आज बोल दिया तलाक, फिर कुछ टाइम बाद बोल दिया, फिर कुछ टाइम बाद बोल दिया, सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा दी। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं देंगे, एक एक महीने के गैप पे दे देंगे या थोड़े गैप पे दे देंगे, और उसको भी वेरीफाई कर दिया, वैलिडेट कर दिया कि हाँ शरिया के हिसाब से तलाक होता है। तो तलाक बिद्दत बैन हो गया, लेकिन तलाक हसन,
तलाक एहसन मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिलाओं के साथ आज भी हो रहा है। क्लियर कट ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, क्लियर कट लीगल राइट वायलेशन हो रहा है इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉस। एक एग्जाम्पल जब मुझे पता चला था, मैं तो दंग रह गई थी एज अ मदर। वो मुझे काफी लेट पता चला कि एक महिला मेरे पास आई, बोलती है कि मैम मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मैंने कहा बच्चा कैसे तुम्हारा छीना जा सकता है, तुम माँ हो। वही अपना वकीलों वाली फॉर्म में उसको समझाया, तो उसने मुझे बोला कि नहीं, शरिया में ना माँ जो है वो बच्चे की गार्जियन नहीं होती। तो जब मैंने उसके बारे में अध्ययन किया तो आई फाउंड दैट शी वाज राइट। एज पर शरिया, मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। नेचुरल गार्जियन, सोचिए, प्रकृति ने चुनी मेरी कोख, मैं भी एक 5 साल के बच्चे की माँ हूं। प्रकृति ने चुनी मेरी कोख कि वो बच्चा मेरी कोख में पैदा हो, प्रकृति ने वैलिडेट किया, मुझे अपॉइंट किया नेचुरल गार्जियन। लेकिन ये इस्लाम के ढोंगी आशिक, मजहब के फर्जी ठेकेदार ये तय करेंगे कि माँ अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं है। वो बच्चा जिसके शरीर का एक एक ऑर्गन मेरे खून की एक एक बूंद से बना है, मैं उस बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं हूं। फिर आगे बढ़ा कि अगर माँ नहीं है तो कौन है, कि भाई फादर है, और अगर फादर नहीं है तो दादाजी हैं, दादाजी नहीं है तो चाचा ताऊ, कोई भी मेल मेंबर ऑफ योर ससुराल वुड बी द गार्जियन ऑफ, नेचुरल गार्जियन ऑफ योर चाइल्ड। तो उससे बच्चा छीन लिया गया, उसको धक्के देके निकाल दिया गया। ये अब उसको लेके आप कहां जाइएगा, आप थाने जाइएगा तो क्या बोलेंगे, किस किस प्रावधान के अंतर्गत वो एफआईआर लॉन्च करेंगे? वो तो सिंपल बोलेंगे कि जी हाँ शरिया अच्छा ये कहता है, एक दिखा देंगे कहीं लिखा हुआ, किसी फैब्रिकेटेड हदीस भी तो है बहुत सारे, आई थिंक सैकड़ों की तादाद में फैब्रिकेटेड हदीस हैं जिसमें कुछ भी मनमाने तौर पे चीजें लिखी गई हैं। और मुस्लिम स्कॉलर्स के पास इतना समय नहीं है कि बैठ के पढ़ें, अध्ययन करें, रिफॉर्म की बात करें। अगर ये भी चाहते हैं कि भाई हमारे इस्लाम के हिसाब से कानून चले तो उसको कोडिफाई करिए। वो कोडिफिकेशन शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ लैंड। आपका कोई भी प्रावधान, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका कोई भी प्रावधान भारत के संविधान, भारत की क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, भारत की नेशनल एथॉस के, भारत के वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ तभी होनी शुरू हुई है जब अपराध होने लगे, जब संविधान की धज्जियां उड़ाने लगे आप, जब भारत के क्रिमिनल लॉ का वायलेशन करने लगे आप इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉ, तब ये आवाजें उठनी शुरू हुई। और समाज से ही मुस्लिम महिलाएं अब आवाज उठा रही हैं, वो बाहर निकल कर आ रही हैं। एक उदाहरण मैं आपको देती हूं, बहुत ही मतलब बहुत अजीब सा उदाहरण है, आई एम सॉरी बट आप सब यहाँ पे वाकिफ होंगे, सब लोग वाकिफ होंगे। एक होता है मिस्यार निकाह। मिस्यार निकाह का शायद आप नाम वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन आपके हैदराबाद में बहुत होता है। मिस्यार निकाह गूगल पे डाल लीजिए। मिस्यार निकाह का मतलब होता है ट्रैवलर्स मैरिज, यानी कि यात्री निकाह, कि अगर कोई मुसलमान पुरुष यात्रा कर रहा है तो वो उस यात्रा की ड्यूरेशन में किसी मुसलमान लड़की से निकाह कर सकता है, और लड़की से ही नहीं बच्ची से भी कर सकता है, क्योंकि एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी। तो किसी बच्ची से भी शादी कर सकता है अपनी यात्रा के दौरान, और जब वो यात्रा समाप्त होगी तो उस निकाह की एक्सपायरी आ जाएगी। नो राइट्स, नो क्लोजर, नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी, तो सब भूल जाइए। लड़की का कोई से ही नहीं है। हैदराबाद में अरब से बूढ़े बूढ़े शेख आके माइनर बच्चियों को खरीदते हैं निकाह के नाम पर, आए दिन अखबारों में छपता है, और सिस्टम भी बैठे हुए देखता रहता है, पुलिस भी बैठे हुए देखती रहती है, समाज भी बैठे हुए देखता रहता है। इट्स मॉकरी ऑफ द एंटायर सिस्टम कि हमारी बच्चियों को उस भारत में जहां पे महिला सम्मान के लिए रामायण महाभारत जैसे युद्ध हो जाते हैं, उस भारत की बेटी को आप भूल जाइए कि वो किस मजहब की है, लेकिन भारत की बच्ची तो है। भारत की बच्ची के साथ आप लिटरली रेप करके चले जाते हैं निकाह के नाम पर, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, कानून ही हमारे हाथ बांध देता है। एक उदाहरण और मुझे याद आता है अडॉप्शन का, कि ये कहते थे कि भाई मुसलमानों को अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। वो उसके पीछे क्या था कि भाई किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे तो अच्छा तुम बच्चा करने लायक नहीं हो, बच्चे के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं लेकिन मुझे बच्चे के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये फर्जी एक अफवाह उड़ाई कि अडॉप्शन अलाउड नहीं है। इसको खैर सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी, 2014 का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि राइट ऑफ अडॉप्शन की बात जहां पे आएगी तो प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विल प्रिवेल ओवर ऑल पर्सनल लॉज थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अडॉप्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है,
कौन अडॉप्ट कर सकता है, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, वो सब कैटेगोरिकली मेंशन्ड है। तो मुस्लिम्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट इसमें कवर कर दिया कि भाई अडॉप्ट आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बांधे हुए हैं आर्टिकल 37 ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता, तो बिट्स एंड पीसेस में बेचारे कोशिश करते हैं कि कुछ प्रोटेक्शन इन मुसलमान बच्चियों को मिल जाए। एंड टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट को भी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि प्लीज लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड। जुडिशरी पर भी प्रेशर पड़ता है, अननेसेसरी केसेस फाइल होते हैं, कितनी लाखों की तादाद में फाइल्स पड़ी रहती हैं, क्या क्या वो देखेंगे। तो ये अडॉप्शन का चलिए सॉल्व हुआ। अब एक उदाहरण मैं आपको देती हूं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। भारत में एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो क्या कहता है कि किसी भी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक किसी भी तरह का शोषण अगर आप करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आपको चार्ज किया जाएगा। क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के ऑर्डर्स होते हैं। अगर हस्बैंड नहीं मानता है तो फिर सजा का भी प्रावधान है। और सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, वर्बल, मेनी काइंड ऑफ अब्यूजेस आर कवर्ड। लेकिन मुस्लिम महिला के साथ ये सारी तरह की अब्यूज हो रही है, ये सारी तरह की अब्यूज, और इससे भी और कहीं ज्यादा अब्यूज हो रही है इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी मजबूर और बेचारी बनी खड़ी रहती है और मुसलमान महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। एक दो मैं आपको रेगुलर लाइफ के उदाहरण देती हूँ। सपोज करिए कि किसी मुस्लिम महिला और मुस्लिम पुरुष की शादी हुई, आपस में निकाह हुआ और उनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आए और शादी मतलब उनको ये है कि भाई हम डिवोर्स ले लेते हैं। तो अब कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो मेल होता है, जो लड़का होता है, वो ये कहता है जान नहीं देता डिवोर्स, जो करना है कर ले। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरी शादी कर सकता है बिना डिवोर्स के भी, लेकिन वो लड़की शी विल बी हैंगिंग इन बिटवीन, वो कहीं दूसरी शादी नहीं कर सकती है। तो आप ये देखिए कि डिवोर्स देकर भी टॉर्चर कर रहे हैं और डिवोर्स ना देकर भी टॉर्चर कर रहे हैं, और वो धक्के खा रही है। कहते हैं कि जी खुला, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मुझसे कहते हैं सुबुई जी आप कहती हैं महिला को अधिकार नहीं है, खुला में तो महिला को अधिकार है। मैं कहती हूँ कहाँ मिलता है खुला? बोलते हैं आप जाइए इस्लामिक कोर्ट्स में जाइए, उन इस्लामिक कोर्ट्स में जहां पे सारे वो कट्टरवादी डिसीजन मेकर्स बैठे हैं। एक लड़की मेरे पास वो भी आई जो खुला मांगने के लिए गई थी इस्लामिक कोर्ट में, उसको वहां पे अरे कुछ नहीं होता, तलाक मत लो, ये सब करके वो इतना प्रेशर बना देते हैं उस महिला के ऊपर। वो जैसे रूम में आएगी उसको सारे अजीब नजरों से देखेंगे, शी डजंट फील प्रोटेक्टेड। कहीं नहीं मिलता है खुला, सिर्फ थ्योरी में ही दिख रहा है। इन प्रैक्टिस मुस्लिम महिलाओं को खुला नहीं मिल पा रहा है और उसको यही बोला जाता है नहीं निभाओ कि जी वो तो दूसरी शादी करने को कह रहा है। तो क्या हुआ? शरिया में अलाउड है ना, अगर दूसरी शादी करने को कह रहा है तो शरिया में तो कोई गुनाह नहीं, गुनाह थोड़ी कर रहा है, जाओ जाओ निभाओ। इस तरह से उस बच्ची को बोल दिया जाता है। ऐसे भी उदाहरण है हमारे सामने। एक मैं एग्जाम्पल आपको देती हूं कि अगर सपोज करिए कि दो पढ़े लिखे मुसलमान बच्चे हैं, आपस में शादी हुई और नॉन कंपैटिबिलिटी के कारण उन्होंने डिवोर्स ले लिया, मानिए शरिया के ही अनुसार कि भाई उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले लिया कि हम तलाक ले रहे हैं, तलाक 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 या व्हाटएवर करके एक डॉक्यूमेंट बनाया, दो चार गवाह बैठा के, उनका शरिया के हिसाब से तलाक हो गया। अब सपोज करिए पढ़े लिखे बच्चे हैं, आगे जीवन में जाके उनको किसी हिंदू से शादी करनी है, तो वो शादी होगी स्पेशल मैरिज एक्ट में। स्पेशल मैरिज एक्ट में ही होती है ना इंटरफेथ शादियां, अपने अपने रिलीजन को रिटेन करते हुए भारत में दो अलग अलग रिलीजन के लोग शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर ऐसा कपल जाता है, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति जाता है, तो उससे प्रॉपर डिवोर्स डिक्री मांगी जाती है, क्योंकि वहां पे एक एफिडेविट लगता है कि आई एम नॉट मैरिड, आई हैव नेवर बीन मैरिड, या यस आई एम डिवोर्स एंड मेरी डिक्री डिवोर्स डिक्री अटैच्ड है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस एफिडेविट का, यू कैन गेट अवे विद इट, वो आपको लगाना ही है। तो आपके पास तो है ही नहीं कोई डिवोर्स डिक्री, आपने तो शरिया के हिसाब से ले लिया। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो कोर्ट होती है, मजिस्ट्रेट विल नॉट रिकॉग्नाइज योर शरिया का डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से वहां पे फंस जाते हैं। मेरे पास एक केस ऐसा भी आया कि जिसमें एक मुस्लिम बच्चे को आगे किसी नॉन मुस्लिम से शादी करनी थी कि मेरे पास तो डिवोर्स डिक्री नहीं है, तो वापस जाना पड़ा उसको अपने उस पार्टनर के पास कि मुझे लीगल कुछ डिवोर्स का दे दो क्योंकि मुझे दूसरी शादी करनी है। और वो पार्टनर तब तक दूसरी शादी भी कर चुका था। तो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो दूसरी शादी कर चुका है, अब उसको कैसे लीगल डिवोर्स देगा।
तो इस तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी आते हैं समाज में जो हम लोगों के सामने नहीं आते हैं। मैं बिकॉज एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू, क्योंकि हमारे विषय से रिलेटेड है कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, और खास तौर से मुस्लिम समाज को इस पे मनन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो मैं, अगर कोई समझदार मुस्लिम विद एन ओपन माइंड मेरे सामने बैठता है और ये सारी बातें सुनता है तसल्ली से, तो दे कांट हेल्प बट अग्री। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, वो अपना खाना खुद बनाते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे। मैं उनको फेमिनिस्ट मानती हूँ। उन्होंने पहली शादी अपनी उम्र से बहुत बड़ी महिला से करी थी। आप 11-11 साल की बच्चियां ढूंढ रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि जितनी कम उम्र की हो उतनी बेहतर है, जितनी यंग हो उतनी बेहतर है, आप वर्जिन लड़की होनी चाहिए, इस तरह से आप लड़कियां ढूंढते हैं। कौन से मुसलमान पुरुष में हिम्मत है कि अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करे? कौन सा मुसलमान पुरुष है जो विधवा मुसलमान लड़की से शादी करे? प्रॉफिट मोहम्मद ने करी थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिजनेस वुमन से शादी करी थी। बुर्का या हिजाब या नकाब पहने हुए चार दीवारी में बैठी हुई किसी महिला से शादी नहीं करी थी। उनकी बीवी तिजारत करती थी, उम्र में बड़ी थी, विडो थी। कितने मुसलमान पुरुष आज अपने प्रॉफिट की टीचिंग्स पर चल रहे हैं? हम उन मुस्लिम बच्चियों को एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं जिनके प्रॉफिट उस जमाने में अरब की कबायली जंगली लैंड में विमेन राइट्स की बात करके गए हैं। उस जमाने में मुसलमान बच्चियों को पैदा होते ही धरती में दफना दिया जाता था। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्लाह ने सलाम भेजा है, ताकि बच्चियों को दफना ना दिया जाए। तो मैं मुस्लिम समाज के भी स्कॉलर्स से ये अपील करती हूं कि थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें। हमारी दुश्मनी किसी व्यक्ति से हो सकती है, किसी संगठन से हो सकती है, किसी पार्टी से हो सकती है, लेकिन अपनी कौम की उन मासूम बच्चियों की तरफ तो देखिए जिनका सेक्सुअल वायलेशन हो रहा है इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज। आपके हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे प्रधानमंत्री तो उस दिन बनेगी ना जिस दिन अरब से बूढ़े शेख आपके हैदराबाद में खरीद के नहीं लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री तो उस दिन बनेगी जब उसके हाथ में किताब थमाएंगे और उसको नकाब में लपेट के नहीं बैठा देंगे। इमोशनली इंसाइट करने के लिए डायलॉग मार देते हैं, बट ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हिज ओन कम्युनिटी। 3-4 जनरेशन पहले तक हीरो बुक चलाते थे। आज आप हैदराबाद से एयरपोर्ट तक जाइए तो पूरी कई प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं की, ओवैसी साहब की। मुसलमान के नाम पे राजनीति कर करके आप लीडर बन गए, लेकिन वो मुसलमान आज भी फल बेच रहा है, वो मुसलमान आज भी ठेला चला रहा है, आज भी पंक्चर जोड़ रहा है, आज भी सब्जी लगा रहा है। अगर आप सही मायने में मुसलमानों के नेता हैं तो यू शुड थिंक अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर ओन पीपल। आपके बच्चे तो मदरसे में पढ़ते नहीं है, आपके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ते हैं, तो आप पे फर्क क्या पड़ता है कि उन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है मुसलमान बच्चे को? आप चाहते ही नहीं है कि मुसलमान बच्चे की शिक्षा, उसकी न्याय प्रणाली, उसका व्यवहार, उसके कानून सब कुछ भारत के दूसरे बच्चों की तरह हो, क्योंकि जिस दिन वो हो गया उस दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी दुकान ही अलगाववाद पे, सेपरेटिज्म पे चल रही है। ये सवाल एक दिन एक डिबेट में टकरा गए थे मुझे। एबीपी का में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डिबेट होती है, तो आई आस्क्ड हिम दीज क्वेश्चंस और इनमें से एक भी सवाल का जवाब मुझे लॉजिकली नहीं दे पाए। मैंने कहा आप राजस्थान में अगर कन्हैया लाल की सरकलम कर दिया जाता है अल्लाह अकबर का नारा लगा के, तो आप उस लिंचिंग को तो कंडेम कर देते हैं, आके लिप सर्विस दे देते हैं कि आई कंडेम दिस, ये भारत में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये आतंकवादी रातों रात नहीं बनते हैं। इन आतंकवादियों को पहले अलगाववादी बनाया जाता है, फिर कट्टरवादी बनाया जाता है, फिर आतंकवादी बनाया जाता है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का साथ क्यों नहीं देते हैं अगर आप मुसलमानों के हकदार हैं तो, या मुसलमानों के सरपरस्त हैं तो? ही हैज नो आंसर। एक और मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। एट द टाइम ऑफ ट्रिपल तलाक इन्हीं ओवैसी साहब की एक स्टेटमेंट आ रही थी कि दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15। तो ये कह रहे थे कि आर्टिकल 15 में जब कैटेगोरिकली कह रहे हैं तो आप रिलीजन के और जेंडर के आधार पे अलग कानून कैसे बना सकते हैं? दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 15। अब बैरिस्टर हैं तो कानून की भाषा में चाशनी में लपेट के बोलेंगे तो लोग मान भी लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि यही आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 3 है। आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए अगर सरकार कोई कानून बना रही है तो आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन है, बट ही विल नॉट टेल दैट। तो आधी हाफ ट्रूथ इज एज गुड एज अ लाई। आधा अधूरा सच अगर आप बोलेंगे तो आप झूठ ही बोल रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए।
तो मुझे ये लगता है कि आज हमें बहुत सारी चीजें रिव्यू करने की जरूरत है, हमारे संविधान को रिव्यू करने की जरूरत है। जब हमारे मुसलमान भाई बहनों को भड़का दिया जाता है आर्टिकल 25 का हवाला देखें कि आपका राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 क्या कहता है? कहता है कि मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे अपने मजहब का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है, अपने अलग कानून रखने का अधिकार है नहीं कहता है। I can practice, profess and propagate my religion. This right is given by Article 25. But all fundamental rights are subject to certain limitations. आप आर्टिकल 25 के नाम पे मैं उदाहरण देती हूँ, मुझे नमाज पढ़ने का अधिकार है क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, मुझे नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते सड़कें ब्लॉक कर देने का तो अधिकार नहीं है। मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के नाम पर भारत के हिंदू देवी देवताओं को गाली दे देने का तो अधिकार मुझे नहीं है। मुझे राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार मेरा संविधान देता है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पे सड़कें जाम कर देने का, पूरी सिटी को होस्टेज कर देने का, पब्लिक प्रॉपर्टीज को आग लगा देने का अधिकार तो नहीं है। तो ये हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। All fundamental rights are subject to certain limitations, public order, morality, decency, public health. इन सब चीजों को वायलेट करके आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, किसी दूसरे के अधिकार का हनन करके आप अपने अधिकार को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। शाहीन बाग के जब दंगे हुए थे दिल्ली में, 4 महीने के बच्चे को गोद में लेकर प्रोटेस्ट पे बैठ गई थी, ठंड में मर गया था वो बच्चा। इस तरह की चीजें आप फंडामेंटल राइट्स के नाम पे देश में नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 शुड बी रिव्यूड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जब 14 कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 14 कि हर नागरिक को इक्वालिटी होनी चाहिए कानून के सामने, तो इन मुसलमान बच्चियों को क्यों ना हो। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो फिर अलग कानून क्यों हो रिलीजन के आधार पर? आप ही तो चिल्ला चिल्ला के सब लोग कहते हैं कि ये सेक्युलर देश है, सेक्युलर देश है। तो सेक्युलर देश में पंथ के नाम पे, मजहब के नाम पर अलग कानून क्यों चल रहे हैं? ये कुछ सवाल हम लोगों को आज बहुत ही कॉन्फिडेंटली विद कन्विक्शन पूछना चाहिए। वी आर अगेंस्ट नो रिलीजन, किसी रिलीजन के खिलाफ कोई है ही नहीं, भारत में कभी कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन ये अपराध हम अपने देश में अब नहीं होने देंगे। नो प्रैक्टिस, नो पर्सनल लॉ, इवन इफ इट्स कोडिफाइड, no personal law can violate the criminal law of land. No personal law should violate the constitution of India. ये कुछ एक मोटे मोटे तौर पे कुछ बिंदु हैं जिन पे हमें विद कन्विक्शन बात करनी चाहिए, बैकफुट पे रहकर बात नहीं करनी चाहिए। अब इन कारणों से यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। ह्यूमन राइट्स का कहां वायलेशन हो रहा है, शायद आप लोगों को इन उदाहरणों से ज्यादा और भी कुछ एग्जाम्पल्स याद आए होंगे। एक चीज मैं और जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे जो भारतीय सनातन वैल्यू सिस्टम है उसमें महिलाओं का एक विशेष स्थान है, महिलाओं का एक विशेष सम्मान है। तो भारत के वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। एक दिन मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गोविंद जी आप ये कहते हैं, ये बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, ये बहुत सुंदर 2 मिनट की बात है, अगर कोई रिकॉर्ड भी करना चाहे तो प्लीज कर ले, और कम से कम 10-10 लोगों के साथ ये शेयर करिएगा, क्योंकि मेरी तो आंखें खुली रह गई थी जब उन्होंने बात बोली थी, और एग्जैक्टली उनके शब्दों में ही रिपीट करूंगी। एक कॉमा फुल स्टॉप भी मैं अपना ऐप कहते हैं कि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। तो मुझे ये बताइए कि 10 साल के बच्चे को भी अगर बताना हो कि हिंदू वैल्यू सिस्टम क्या है, व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर, हम आखिर लड़ किस चीज के लिए रहे हैं, तो कैसे बताऊं अगर एक 10 ईयर ओल्ड आके मुझसे पूछे तो, या कॉलेज के यंग बच्चे आके पूछे तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं रिपीट करूंगी। उन्होंने कहा हिंदुत्व यानी क्या? देश की कलेक्टिव स्मृति का परिपाक। वो क्या है? 5 बातें नमूने के तौर पे बताता हूं। पहला, सभी उपासना पद्धतियों में अखंड श्रद्धा, सभी उपासना पद्धतियों से उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह विश्वास। दूसरा, एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है, सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर, जो हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण भी बता के गए हैं कि चींटी से लेके पहाड़ तक मैं हूं। तीसरा, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है, इसी कारण हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। चौथा,
मातृत्व के गुण होने के कारण महिला यानी नारी का समाज में विशेष आदर। और 5वां, खाओ पियो और मर जाओ यही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, इससे ऊपर भी जीवन का एक उद्देश्य है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, यह विश्वास। जो इन 5 बातों को मानता है वो हिंदू है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो श्री राम को माने, श्री कृष्ण को माने, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, बाबा नानक को माने, प्रकृति को। इन 5 वैल्यूज की ही लड़ाई है और ये वैल्यूज हमें प्रोटेक्ट करनी है, नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज, अपराध, आतंकवाद, साइकोपैथी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, बाजारवाद, ना जाने किन किन चीजों से जूझ रहा है। आज इन हिंदू वैल्यू सिस्टम्स की ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को जरूरत है। इसलिए हमें पहले खुद जागृत होना है, पहले खुद एक होना है, एक ये मशाल जलानी है, उसके बाद इस मशाल से हम पूरे विश्व को रोशनी दिखाएंगे और तभी हम बनेंगे सही मायने में विश्व गुरु। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ और है। देखिए, अभी तो उत्तराखंड सरकार का एक ड्राफ्ट आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो उसमें किसी रिलीजन का कोई मेंशनिंग नहीं थी, लेकिन पॉइंट्स यही थे कि शादी अगर होंगी तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, सक्सेशन में बराबर का अधिकार होना चाहिए, और मल्टीपल मैरिजेस, बहु विवाह जो है वो पनिशेबल ऑफेंस होंगे। इस तरह की मेंशनिंग है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को मेंशन करके नहीं कहा गया है। मैं पर्सनली मुस्लिम बच्चियों के उदाहरण इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि अपने घर को साफ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है, और जब ये बच्चियां मेरे पास आती हैं तो मैं मॉरली ये मानती हूँ कि अगर मुझे मंच मिल रहा है तो उनकी बात, उनके उदाहरण सही जगह पर पहुंचे ताकि उनका मेरे पास आना भी सफल हो। और अगर इन सेशंस के माध्यम से, अवेकनिंग के माध्यम से हम ये काम कर पाए, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम्स या ज्यादा वायलेशन इस वक्त पर्सनल लॉस के नाम पर मेरे हिसाब से मुसलमान बच्चियों का ही हो रहा है। So PJ, I'm Naveen. My question is directly to you. Thing is that, like, as you rightly said, that uniform civil code introducing in the Indian Constitution is very difficult right now. So my question to you is that, आप जानकार है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, आप खुद एक, there are 3 types of politics in India. One is played by communal, like Owaisi साहब, whatever. And second is our Arvind Kejriwal ji, freebies. And third is the dynasty politics. And we are lacking in that 3. We have a space in that. Coming out with a Muslim lady like you to protect completely to the Muslim community. Not, you should be a neutral one. Why can't you start a political party on behalf of you coming together? I'm the wrong person to answer this question. पहली बात तो मुझे ये लगता है कि समाज ने बहुत बार सत्ता परिवर्तन किया और हमेशा निराश ही हुआ, तो मुझे लगता है कि अब सत्ता परिवर्तन या नई पॉलिटिकल पार्टी के बजाय व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, सिस्टम चेंज। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आई थिंक शुड बी डायरेक्टेड टू माय गुरु, क्योंकि बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं कहती हूँ गोविंद जी हाँ कहेंगे तो हाँ, गोविंद जी ना कहेंगे तो ना, तो आई हैव नो डिसीजन इन दिस। अच्छे एडवोकेट हो और सभी पॉलिटिक्स में एडवोकेट ही भरे हुए, तो व्हाई कैंट यू स्टार्ट दैट? Without advocate, without politics, our system will not change. Right, sir. I think she has answered the question. Next question, please. Yeah. शिवी जी नमस्ते, हम अजीत माथुर। हमारे हनुमान जी और प्रज्ञा भारती को पहले मैं धन्यवाद करता हूं जो आपको यहाँ पे इनवाइट करे हैं, और मैं आपसे पहले तो आपके हाथ को सलाम करना चाहता हूं जो आप मौलाना पे हाथ उठाए थे। और दूसरा, मैं वक्फ बोर्ड जो है वो ये लोग कांग्रेस गवर्नमेंट जो रूल पास करे है, क्या वो अबॉलिश करा सकते हैं क्या आगे? वक्फ बोर्ड पॉलिसी, कैन इट बी अबॉलिश्ड? वक्फ बोर्ड पॉलिसी ये मतलब इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आई थिंक 6 लाख समथिंग नंबर में थोड़ा इधर हो सकती हूँ,
कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज वक्फ माफिया के हाथ में है। वक्फ का जो एक्चुअल मोटिव था वो ये था चैरिटी या मुस्लिम्स के लिए स्कूल्स बने, एजुकेशन अस्पताल बने, या इस तरह की जो आजकल हो नहीं रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर देश की प्रॉपर्टी इंक्रोच कर ली गई है और बहुत सारी वक्फ माफियाओं के हाथ में है। तो डेफिनेटली ये भी एक अलग से मूवमेंट होना चाहिए, बट ये आज के विषय से रिलेटेड नहीं है, तो उस पर मैं डिटेल में चर्चा नहीं कर पाऊंगी। जय हिंद मैडम, पूछना चाह रहा हूँ, राजस्थान में एक जलसा हुआ था, उसमें हमारा हैदराबाद के नवाब साहब यानी सुल्तान साहब बहुत लंबी बातचीत करे, उसमें जो है ना हिंदू भाइयों को ऑलमोस्ट धमकी दिए जैसे बात करे। उनकी जो उपन्यास में उन्होंने ये बोला था, यूसीसी आए तो इनकम टैक्स के तहत जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एग्जेम्पशन चले जाते हैं, उसका कीमत है 2,40,000 करोड़ पर साल। यह क्या, यह सच है क्या? कैलकुलेशन तो मुझे नहीं पता और मैंने ये स्टेटमेंट उनकी सुनी भी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि हिंदू कोड बिल पहले आ चुका है, हिंदू लॉज में रिफॉर्म भी हो चुके हैं, हिंदू लॉज कोडिफाई भी हो चुकी हैं, तो मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि अगर हम भारत जैसे देश में जहाँ पे पर्सनल लॉज ना ही सिर्फ रिलीजन के नाम पे बल्कि ट्राइबल एरिया में भी बहुत जगह अलग अलग चल रही है, अगर हम सोचें कि एक ही साथ सारी समस्याओं का समाधान कर दें, एक अम्ब्रेला, एक प्रोविजन, कोई लॉ ले आए, तो मुझे लगता है हो नहीं पाएगा। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि इस बार शायद मुस्लिम बच्चियों के प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ आनी चाहिए और स्टेट वाइज आए तो और ज्यादा बेहतर है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वुड बी अनटच्ड, ऐसा मुझे महसूस होता है। शायद उसका मीटिंग आप देख सुन लीजिए, लेटेस्ट है। हाँ, आप मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन जो भी होगा ये नरेटिव बिल्डिंग ही है, क्योंकि अभी तो सरकार का भी कोई उसकी भाषण में डेंजर है मैडम, समझ लीजिए। उन्होंने बहुत प्यार से बोल रहा, हमारा हिंदू भाई समझना है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो उनका हक चले जाएगा, तो हम भी उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसका उद्देश्य देखिए मेन यही है कि समाज यूनिफॉर्म सिविल कोड आने ना दे, समाज खड़ा हो जाए। जैसे CAA में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता देने में एक थोड़ा सा कुछ हम रिलीफ दे रहे थे, ऐसे नहीं कि उनको ऐसे ही दे देते, कुछ रिलीफ दे रहे थे, उसमें ये भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों को भारत से भगा देंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें मुस्लिम शब्द भी नहीं था, तो इस तरह की नरेटिव बिल्डिंग के लिए भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाए जाते हैं। अभी तो सरकार का भी कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, तो हाउ कैन वी अज्यूम कि क्या होने जा रहा है। अभी जो एक स्टेट गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट आया है उसमें हमें यही मोटे मोटे तौर पे बातें देखने को मिली हैं, जो उदाहरण मैंने आपके साथ कुछ शेयर किए, और पहले चरण में अगर इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी। Very good. Relating to uniform civil code, if at all uniform civil code come into existence, what was the flaws happened previously? That is, what was the injustice happened to the female in some communities? What is your opinion to make justice even from now, or even after coming from the uniform civil codes? This is my doubt. Dheeraj bhai. In your opinion, what is the justice that we can make in future even? I think she was talking about it in detail, right? नहीं, मेरी जो ओपिनियन है वो मैं यही कुछ बिंदुओं में शेयर कर चुकी हूँ कि देखिए, एक तो मल्टीपल मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए पॉइंट कि भाई सभी बच्चियों को प्रोटेक्शन मिले, एज ऑफ मैरिज वाला एक प्रोटेक्शन मिले, उससे उनको जस्टिस मिल जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो प्रोटेक्शन मिलता है वो भारत की सभी बेटियों को समान तौर पे मिले। ये कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं, दे विल इंश्योर कि मोटे मोटे तौर पे काफी हद तक महिलाएं इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन will be covered. But my question is relating to past. What was the injustice happened already to the female? Is there any possibility to get justice? She did mention already. बहुत अच्छा लगता है जब एक समाज जो विरोध कर रहे हैं, साइलेंस प्लीज। हमारी प्रमुख वक्ता जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी है और उस चीज को इतनी सुंदर तरीके से समाज में प्रस्तुत करती है कि जितनी भी बातें हैं, मैं जानता हूँ शायद मैक्सिमम लोग इस सब चीज़ों से वाकिफ हो चुके हैं,
कि काफी मीडिया इसके बारे में बोलता है, चर्चाएं होती है, और दिक्कत कहाँ आ रही है? वोट बैंकिंग की राजनीति जो है वही प्रोटेस्ट कर रही है। बाकी दोनों समाज के लोग शायद इसको बहुत स्वतंत्र स्वीकार सकते हैं। अभी जो एचएफ की बात भी आ रही, हिंदू इतना लिबरल है, कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है राष्ट्रीय हित में। तो कोई इतना एचएफ वाली बातें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम सेक्रीफाइस कर देंगे, पर वो